Okay, so is the screen visible now? हाँ जी सिस्टर विजिबल है। Okay, so you can start, sister, whenever you're ready. ओके, स्टार्ट करते हैं। Why he could not be healed. This is a case history of a married man with 4 children who was supporting and secretly living with another woman during his business trips. He was ill, nervous, and irritable and cantankerous. He could not sleep without drugs. The Sister, doctor's your medicine. voice is a bit slow, sorry. ओके मुझे ओके, क्लियर नहीं आ रहा या सबको स्लो आ रही है? थोड़ा सा। इज इट बेटर नाउ सिस्टर? या अभी मच ठीक है बेटर। क्या? हाँ जी, मच बेटर, ओ, मच बेटर। थैंक यू। ओके ओके ओके, मैं शुरू से फिर से करती हूँ। हाँ जी। ओके, why he could not be healed. This is a case history of a married man with 4 children who was supporting and secretly living with another woman during his business trips. He was ill, nervous, irritable, and cantankerous, and he could not sleep without drugs. The doctor's medicine failed to bring down his high blood pressure of over 200. He had pains in numerous organs of his body which doctors could not diagnose or relieve. To make matters worse, he was drinking heavily. तो यहाँ पे ऑथर हमें एक मैरिड मैन की हिस्ट्री बता रहे हैं। उनके लाइफ में पर्सनली वो किसी और वुमेन के साथ संबंध बना बैठे थे, एंड जिस वजह से फिर ना वो बहुत इल रहने लग गए थे एंड बहुत चिड़चिड़े हो गए थे, एंड उनको रात को सोने के लिए दवाइयों की जरूरत पड़ने लगी। डॉक्टर्स भी उनके हाई ब्लड प्रेशर को ठीक नहीं कर पा रहे थे, एंड और भी इम्पोर्टेंटली उन्होंने क्या किया, वो बहुत ड्रिंक करने लग गए थे और उससे मैटर और भी वर्स हो गया था। द कॉज फॉर ऑल दिस वॉज अ डीप अनकॉन्शियस सेंस ऑफ गिल्ट। सिस्टर आप स्क्रॉल करेंगे प्लीज? हाँ जी। ही हैड वायोलेटेड द मैरिज वाउज। बस ज्यादा हो गया। हाँ जी हाँ जी। एंड दिस ट्रबल्ड हिम. The religious creed he was brought up on was deeply lodged in his subconscious mind, and he drank excessively to heal the wound of guilt. Some invalids take morphine and codeine for severe pains. He was taking alcohol for the pain or wound in his mind. This it was the old story of adding fuel to the fire. तो एक्चुअली हो क्या रहा था उनके साथ, वो ना एक गिल्ट में चले गए थे, क्योंकि जो रिलीजियस प्रथा के अनुसार जो उनके सबकॉन्शियस माइंड में पूरा डीपली फीडेड था, उसके अनुसार वो गलत संबंध बना बैठे थे, एंड इसलिए वो बहुत गिल्ट में चले गए थे। उस मेंटल पेन को रिमूव करने के लिए वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगे थे। तो ऑथर हमें ये समझा रहे हैं कि ये वैसी ही बात हो गई कि जैसे आग में घी डालने वाली। अब द explanation and the cure. He listened to the explanation of how his mind worked. He faced his problem, looked at it, and gave up his dual role. He knew that his drinking was an unconscious attempt to escape. The hidden cause lodged in his subconscious mind had to be eradicated. Then the healing would follow. He began to impress his subconscious mind 3 or 4 times a day by using the following prayer: My mind is full of peace, poise, balance, and equilibrium. The infinite lies stretched in smiling repose within me. I am not afraid of anything in the past, the present, or the future. The infinite intelligence of my subconscious mind leads, guides, and directs me in all ways. I now meet every situation with faith, poise, calmness, and confidence.
I am now completely free from the habit. My mind is full of inner peace, freedom, and joy. I forgive myself. Then I am forgiven. Peace, sobriety, and confidence reign supreme in my mind. तो उन्होंने ना एक इतनी सुंदर सी प्रेयर बनाई और उसको हर दिन 3-4 बार दोहराते थे। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के लिए ये रिपीटेशन वाला काम बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। एंड उनकी ये जो प्रेयर है ना, उसमें एक लाइन मुझे स्पेशली बहुत पसंद आई, दैट आई फॉरगिव माई सेल्फ देन आई एम फॉरगिवन। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले हम खुद को माफ करें, क्योंकि भगवान तो बातों को दिल पे रखते ही नहीं है। और हम क्या करते हैं ना, हम उसी में अटक जाते कि भगवान ने हमें माफ किया होगा कि नहीं, उन्होंने हमें माफ किया होगा कि नहीं। वो एक ना बहुत रिजिड हो जाते हैं हम खुद के साथ। लेकिन भगवान दिल पे नहीं रखेगा, इन केस यू रियलाइज ट्रूली एंड देन चेंज इट, इट्स डन देन। फिर he repeated this prayer frequently as outlined, being fully aware of what he was doing and why he was doing it. Knowing what he was doing gave him the necessary faith and confidence. I explained to him that he spoke these statements out loud, slowly, lovingly, and meaningfully. They would gradually sink down into his subconscious mind like seeds. They would grow after their kind. These truths on which he concentrated went in through his eyes. His ears heard the sound, and the healing vibration of these words reached his subconscious mind and obliterated all the negative mental patterns which caused all the trouble. Light dispels darkness. The constructive thought destroys the negative thought. He became a transformed man within a month. How wonderful! उन्होंने 1 महीने में ट्रांसफॉर्मेशन ले आया विद दिस मेथड ऑफ रिपीटिंग द प्रेयर। तो वो क्या करते थे, वो लाउडली उस प्रेयर को बोलते थे एज सजेस्टेड बाय द ऑथर। तो वो लाउडली, लविंगली, मीनिंगफुली उसको फील करते थे। आंखों आंखों से वो पढ़ते थे, कान भी सुनते थे, तो हर एक बॉडी में उनका अब्सॉर्ब हो गया जो वो चाहते थे बदलना। तो विद इन अ मंथ उन्होंने अपने में बदलाव ले आया। नाउ रिफ्यूजिंग टू एडमिट इट, एक नया स्टार्ट करते हैं। इफ यू आर एन एल्कोहलिक और ड्रग एडिक्ट, एडमिट इट, डू नॉट डॉज द इशू। Many people remain alcoholics because they refuse to admit it. Your disease is an instability, an inner fear. You are, sister, you are refusing to face life, and so you try to escape your responsibilities through the bottle. As an alcoholic, you have no free will, although you think you have, and you may even boast about your willpower. If you are a habitual drunkard and say bravely, I will not touch it anymore, you have no power to make this assertion come true because you do not know where to locate the power. तो कितना इम्पोर्टेंट है कि ऊपर से सिर्फ बोल देने से नहीं होगा, पहले एडमिट करना पड़ेगा कि हाँ मैं अल्कोहलिक हूँ और मुझे बदलना है। वो अंदर से आना चाहिए। You are living in a psychological prison of your own making, and you are bound by your beliefs, opinion, training, and environmental influences. Like most people, you are a creature of habit. You are conditioned to react the way you do. So beautiful. This is called power of habit. इसलिए हमें repeatedly अच्छी आदतें करते ही रहना है, तब change आएगा। Building in the idea of freedom. You can build the idea of freedom and peace of mind into your mentality so that it reaches your subconscious depths. The latter, being all powerful, will free you from all desire for alcohol. Then you will have the new understanding of
how your mind works, and you can truly back up your statement and prove the truth to yourself. 51% healed. If you have a keen desire to free yourself from any destructive habit, you are 51% healed already. So beautiful. अगर deep desire है तो 51% काम हो गया समझ लो. When you have a greater desire to give up the bad habit than to continue it, you will not experience too much difficulty in gaining complete freedom. अगर डीप डिजायर है तो ज्यादा डिफिकल्टी प्रैक्टिकली होगी नहीं फिर. Whatever thought you anchor the mind upon, the latter magnifies. If you engage the mind on the concept of freedom, freedom from the habit, and peace of mind, and if you keep it focused on this new direction of attention, you generate feeling and emotions which gradually emotionalize the concept of freedom and peace. Whatever idea you emotionalize is accepted by your subconscious and brought to pass. तो ऑथर यही समझा रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में हम अपना अटेंशन प्लेस करेंगे, धीरे धीरे फिर सबकॉन्शियस माइंड उसी को भी एक्सेप्ट कर लेगा और न्यू हैबिट फॉर्म हो जाएगी. The law of substitution. Realize that something good can come out of your sufferings. You have not suffered in vain. However, it is foolish to continue to suffer. How wonderful. एक बार तकलीफ आई, उसको ये मत समझो कि तकलीफ ऐसे ही आपने सह ली और वो वेस्ट हो गया. उस तकलीफ से कुछ ना कुछ अच्छा निकल के आया है. इम्पॉर्टेंट यही है कि हमें उस सफरिंग को फिर कंटिन्यू नहीं रखना. If you continue as an alcoholic, it will bring about mental and physical deterioration and decay. Realize that the power in your subconscious is backing you up. Even though you may be seized with melancholy, you should begin to imagine the joy of freedom that is in store for you. This is the law of substitution. Your imagination took you to the bottle. Let it take you now to freedom and peace of mind. You will suffer a little. Sister, will suffer a little bit, but it is for a constructive purpose. This is so important learning क्योंकि ना हम कोई भी हैबिट इसलिए भी चेंज नहीं करना चाहते कि माइंड ना थोड़ा रेजिस्ट करता है सफरिंग फेस करने के लिए. हम कंफर्ट जोन में रहना ज्यादा इजी समझते हैं, ज्यादा प्रेफर कर लेते हैं फिर उसी को. लेकिन ये जानना जरूरी है कि थोड़ी सी सफरिंग जरूर होगी, लेकिन फिर एक कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए हम कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी अच्छा होगा. यू विल बेयर इट लाइक अ मदर इन द पैंक्स ऑफ चाइल्ड बर्थ, एंड यू विल likewise bring forth a child of the mind. Your subconscious will give birth to sobriety. How beautiful. Cause of alcoholism. The real cause of alcoholism is negative and destructive thinking. For as a man thinketh, so is he. The alcoholic has a deep sense of inferiority, inadequacy, defeat, and frustration, usually accompanied by a deep inner hostility. He has countless alibis as to his reason for drinking, but the sole reason is in his thought life. 3 magic steps. The first step, get still. पहले तो ऑथर ने ये समझाया कि अल्कोहलिज्म एक नेगेटिव आदत है. हम समझते हैं कि वो आउटर कोई तकलीफ की वजह से हम अल्कोहलिक बने हैं, लेकिन ऑथर हमें ये समझा रहे हैं कि द मेन रीजन इज द थॉट लाइफ. तो इसीलिए अब ऑथर एम्फेसिस कर रहे हैं स्टेप्स के ऊपर, कैसे हम उस आदत से बाहर आ सकते हैं. तो 3 मैजिक स्टेप्स बता रहे हैं. द फर्स्ट स्टेप, गेट स्टिल.
quiet the wheels of the mind, enter into a sleepy, drowsy state. In this relaxed, peaceful, receptive state, you are preparing for the second step. The second step, take a brief phrase which can readily be graven on the memory and repeat it over and over as a lullaby. Use the phrase, sobriety and peace of mind are mine now, and I give thanks. To prevent the mind from wandering, repeat it aloud and sketch its pronunciation with the lips and tongue so as to say it mentally. This helps it entry into the subconscious mind. Do this for 5 minutes or more. You will find a deep emotional response. पहले तो ऑथर ने ये समझाया कि सोते समय पे ये वाला चीज बहुत फायदेमंद है कि धीरे धीरे एक एकदम स्टिल कर लें, हम अपने सारे थॉट से थोड़ा डिटैच हो जाएं, एक स्लीपी ड्राउजी स्टेट पे पहुंचे। उसके बाद सेकेंडली कोई फ्रेज हम ले लें एंड उसको रिपीट करें। रिपीट माइंड में जोर जोर से रिपीट करते रहे विथ लिटिल मूवमेंट्स ऑफ टंग एंड माउथ, सो दैट हम ना उसको एक इमोशनली इन्वॉल्व हो जाए पूरा उसमें। एंड फिर ऑथर का कहना है कि 5 मिनट के बाद देखेंगे आप एक इमोशनल रिस्पॉन्स खुद फील करेंगे। The third step, just before going to sleep, practice what Johann von Goethe, German author, used to do. Imagine a friend, a loved one in front of you. Your eyes are closed. You are relaxed and at peace. The loved one or friend is subjectively present and is saying to you, congratulations. You see the smile, you hear the voice, you mentally touch the hand. It is all real and vivid. The word congratulations implies complete freedom. Hear it over and over again until you get the subconscious reaction which satisfies. तो थर्ड स्टेप में ऑथर ने गोएथे का स्टेप को हमें वापस याद दिलाया है जो हमने एक रीडिंग सेशन में कवर किया था, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि गोएथे ने क्या किया था ना, वो एक लविंग फ्रेंड को इमेजिन किया करते थे कि वो लविंग फ्रेंड आके उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं ऑन अचीविंग फ्रीडम फ्रॉम बैड हैबिट्स। तो ये उनका थर्ड स्टेप है कि हमने फ्रेज रिपीट किया सेकेंड स्टेप पे, एंड थर्ड स्टेप पे अब हम मेंटली फ्री हो चुके हैं अपने नेगेटिव हैबिट से, और हमें एक फ्रेंड, लविंग फ्रेंड उस पर कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है। ये हमारा थर्ड स्टेप है। हाँ जी सिस्टर। हाँ जी सिस्टर, आई थिंक यहाँ तक ही रखते हैं आज। ओके, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू रीड। थैंक यू सो मच। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, कीप ऑन कीपिंग ऑन। आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। Thank you so much, sister, for conducting this session so beautifully. थैंक यू सो मच सिस्टर। थैंक यू। बहुत अच्छे पॉइंट्स लगे मुझे। सबसे अच्छा पॉइंट यही लगा कि जो ऑथर ने कहा, यू हैव टू फॉरगिव योरसेल्फ। राइट। जो हम होल्ड ऑन करते रहते हैं, गिल्ट ट्रिप में जाते हैं। एंड मैंने कहीं पढ़ा भी था कि जो हमारी रियलाइजेशन ही होती है, व्हेन वी मेक अ मिस्टेक एंड वी रियलाइज दैट, दैट इज व्हाट, देन वो मिस्टेक नहीं रहती फिर। The realization only is, what is the most important thing. तो once we've realized, फिर उसके बारे में नहीं सोचना, we just have to forgive ourselves and move on. तो मेरे लिए सबसे बड़ी लर्निंग यही है, बिकॉज कहीं ना और कहीं मेरी भी गिल्ट ना। में, हाँ जी, हाँ। एक हाँ जी गिल्ट में सिस्टर, जाने मतलब का एक है वो, एक संस्कार है जो बार बार गिल्ट में जाते रहते हैं। तो उसके लिए मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा आज। और पर्सनली मेरे साथ क्या होता है ना, मैं उसको लाइक लीव कर देती हूँ कि नहीं, मुझे ना गॉड से भी माफी चाहिए। मैं ना वो चीज एक थोड़ा सा रिजिड हो जाती हूँ बिहेवियर में। तो इन दिनों रीडिंग सेशन ने ना ये रियलाइज करवाया कि गॉड तो ये सब होल्ड नहीं करते हैं। तो ये जो बिहेवियर है ना कि उनसे हमें माफी पाना है,
तो ये इससे हम खुद की प्रोग्रेस ही डिले कर देते हैं। तो बस खुद ही खुद को माफ किया, रियलाइज किया एंड चेंज किया। डोंट पुट ऑन गॉड। ये चीज करके हम डिले कर देते हैं खुद की हीलिंग को। ये मैंने सीखा है अभी इन दिनों हाँ रीडिंग जी। सेशन। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। हाँ जी। ओम शांति सिस्टर, थैंक यू फॉर ओम योर शांति सेशन। ये थैंक यू। आज का तो मुझे ऐसे लगा कि ये जो एग्जाम्पल आपने बताया कि वाई दैट पर्सन, उसको हीलिंग में इतना डिले क्यों हुआ, क्योंकि वो अपने आप को जज करने लग गया कि मेरे मेरे में इतने बुरे आदतें हैं कि मैं लाइक आई एम मैरिड बट स्टिल आई हैव गर्लफ्रेंड्स। ये सोच करके वो अल्कोहलिक बन गया। पर एक्चुअली ऐसे नहीं होता कि आपके अंदर जो भी आदतें हैं वो आदतें बुरी या अच्छी, पहले बात तो ये जजमेंट करना ही नहीं है। कितनी भी बुरी आदतें, कोई भी एडिक्ट हो, कोई भी सब्सटेंस आपके लाइक एडिक्ट हो, या रिलेशनशिप, मल्टीपल रिलेशनशिप्स अगर आपके हैं, फिर भी अपने आप को जज नहीं करना है। ये सोचना है कि मैं इस लाइन में जा क्यों रहा हूँ। एक्चुअली ये सोचते नहीं है, हम अपने आप को जज कर लेते हैं, इसीलिए हमारी हीलिंग होती नहीं है। तो फर्स्ट थिंग इज वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरे अंदर जो भी आदतें आई है वो आई क्यों है। क्योंकि मेरे अंदर खालीपन है, मुझे सुख नहीं मिल रहा है, इसीलिए मैं लोगों में सुख ढूंढ रहा हूँ, गैजेट्स में सुख ढूंढ रहा हूँ, या फिर कोई भी ट्रैवल करना, या अल्कोहल, या कोई सब्सटेंस, इन चीज़ों में मैं जा रहा हूँ। तो ये बेसिक है एक्चुअली। आत्मा एक पल भी बिना सुख के रहती नहीं है। अगर उसे सुख नहीं मिला तो कोई भी रास्ता अपनाती है, किसी भी हद तक वो जा सकती है। क्योंकि अगर सुख नहीं है, सुख इज लाइक द फूड ऑफ सोल, हैप्पीनेस। अगर वो वेरी ट्रू। फूड नहीं मिला तो वो छीन कर भी, जबरदस्ती कर भी सुख लेगी। ओके, तो वो उनके अंदर कंडीशनिंग बैठी है कि आप जो इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करते हो, तो आपको लगता है कि ये करने से उन्होंने कोई देखा होगा किसी और व्यक्ति को कि उसके पास इतना सब है, सो ही इज हैप्पी, तो वो उसको कॉपी करता है एक्चुअली। तो आप पहली बात तो आप जज नहीं करें, और फिर जो आप जैसे हो आप अर्पण कर दीजिए भगवान के आगे कि मेरे अंदर ये आदतें हैं और मैं ये करता हूँ। तो जब तक आप सरेंडर नहीं करते, आपको वो आदतों से मुक्ति नहीं मिल सकती। आपको एडमिट करना पड़ेगा, कन्फेस करना पड़ेगा, फर्स्ट थिंग इज। आफ्टर दैट आफ्टर दैट ओनली द हीलिंग वुड स्टार्ट। बिफोर दैट क्योंकि लोग एडमिट ही नहीं करते हैं। मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो वाइफ है ठीक नहीं है, इसलिए मैंने गर्लफ्रेंड रख लिया। ये वैलिड रीजन देते हैं, एक्चुअली गलती उनकी है कि वो अपने आप को बदल नहीं रहे हैं। या फिर मैं शराब क्यों पीता हूँ, क्योंकि मुझे ये कुछ गड़बड़ है, या फिर इसलिए मैं शराब पीता हूँ। घर में झगड़े चढ़ते हैं जस्ट टू एस्केप, दे डोंट वांट टू फेस देयर वीकनेस, इसीलिए एस्केप के लिए ये सारे आदतें जाते हैं लाइक। तो ये एस्केप करने के लिए उनके लिए करेज चाहिए। जो छोटी छोटी बातों में अगर आप स्वीकार करेंगे छोटी छोटी चीजें, तो आपको करेज बढ़ेगा, तब आप बड़ी बड़ी आदतों को छोड़ पाएंगे। और फिर ये जो इन्होंने ये सफरिंग जो है ना, एक्चुअली व्हेन द ट्रांजिशन हैपेंस फ्रॉम गुड एंड